Hello everyone, welcome to today's lecture. We are going to start a new chapter today, that is accounting equation. So this is the first step for your practical accounting. I hope you will learn this chapter with all the interest, and I wish that you will enjoy this session and the upcoming sessions that we are going to conduct. So in this chapter we will be doing some practical examples. I will be posting the question and you will be doing that solution along with me. So let's begin our chapter number 5, accounting equation, one of the most important chapter for your upcoming chapters, and not only for the point of view of 11 and 12 but also for your further studies. Accounting equation is an important chapter for you. So first of all ये जान लो कि accounting equation क्या है. So as you guys know कि पिछले चैप्टर्स में मैंने एक इक्वेशन यूज़ किया था, मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें मैंने बताया था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स liability. So in the past chapter I made you understand the dual effect of accountancy. अकाउंटेंसी का एक डुअल इफेक्ट होता है जो मैंने आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी बताया था, उससे पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अगर कोई चीज़ एक डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होगी. दैट इज़ फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ दैट इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा यानी अगर डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा, और अगर कहीं पे क्रेडिट हो रहा है तो उसी अमाउंट का कहीं ना कहीं पे डेबिट भी होगा. डेट मीन्स कि एसेट जो है वो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल ही होगा. मेरा एसेट, मेरी प्रॉपर्टीज़, मुझे बाहर जितने लोगों को पैसा देना है उसके हिसाब से ही होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. इट विल बी ऑलवेज इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which shows that asset and the liabilities of the firm or the enterprise are always equal. जैसा मैंने बताया, this is based on the principle of dual accounting system, dual accounting effect. Every transaction has twofold effect, one that is called credit and another that is called debit. In a simple term, this can also be called that left hand side, ये जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड. If while doing the examples we are not getting the conclusion of the right hand side and the left hand side, यानी अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा है, that means somewhere in our example we have done some mistake. So we need to verify that before doing further problems. Every step by step you need to verify कि right hand side left hand side के equal हो रहा है या नहीं, यानी asset liability equal हो रहा है या नहीं. While doing some practical examples we will come through some points that are assets, liabilities, expenses, revenue. First two things, assets and liabilities. अगर assets
कोई भी प्रैक्टिकल सम्स के अंदर अगर एसेट बढ़ा यानी प्लस हुआ या फिर एसेट माइनस यानी घटा, इफ इट इज प्लस और इफ इट इज माइनस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। एसेट को एसेट की साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। सेम थिंग्स अप्लाइज टू लाइबिलिटीज। इफ लाइबिलिटीज यानी अगर हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों बढ़ रहा है, अगर लाइबिलिटी प्लस हो रहा है और अगर लाइबिलिटी कोई प्रॉब्लम में माइनस हो रहा है तो उसको राइट हैंड साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। प्लस एंड माइनस वो यहीं पे रिकॉर्ड होगा, एसेट का प्लस एंड माइनस यहीं पे रिकॉर्ड होगा लाइबिलिटी के साइड। लाइबिलिटी नाउ if our expenses of the business and the revenue of our enterprise or the business, अगर यहाँ पे कोई प्लस माइनस या चेंज हो रहा है, this will only get recorded to capital. Remember that एक्सपेंस और रेवेन्यू में जो भी प्लस माइनस होने वाला है वो कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड होगा। कैपिटल हमारा राइट हैंड साइड पे है। So I will be giving you some examples and we will try to solve it out today. 5 or 7 एग्जाम्पल अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। I will be writing over here and will send you the picture in the group. So I hope कि वो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम उसे सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप and I will make sure to give you the detailed explanation about that. So these are some 7 questions over here. Those who want to take the screenshot from over here, they can take it. For the rest of you, I will send it in the WhatsApp group. You can download it from the WhatsApp group as well. Now, let's start with the sum. So, before beginning, I want all of you to look at the format of how we are going to solve this question. So, for the solution purpose, you need to have this in your mind. So, the first part is a serial number. यहाँ पे सारे के सारे 1 2 3 4 the serial number जो भी questions का है वो आएगा। Second, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, asset is equal to liabilities and capital. These you have to write compulsorily every time. Serial number, this equation and then left 1 or 2 lines. क्यों ये लाइन को अभी हमने लेफ्ट किया है वो हम सम्स के अंदर जैसे जैसे वो नंबर्स आएंगे सीरियल नंबर उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एंट्रीज या कुछ ना कुछ हेडिंग्स लिखना पड़ेगा। तो ये उसका है, तो याद रखना दिस इज़ द फॉर्मेट. So as per this format we are going to solve only our equation. So number one है Rakesh commences his business with ₹20,000. As you people know, commencing the business यानी anything the owner is investing in the business that is called the capital. यह हमने आगे भी टर्म्स में सीखा है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। ओनर कुछ भी चीज़ अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश हो या फिर बैंक बैलेंस हो, गुड्स हो, फर्नीचर हो, एनीथिंग ही इज़ इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी, इन द बिजनेस, इन द एंटरप्राइज, दैट विल बी कॉल्ड द कैपिटल. सो यहाँ पे ओनर ने कैपिटल ₹20,000 का इन्वेस्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट किया है. So what we are going to do over here is कि कैपिटल मेरा कंपनी में बढ़ चुका है बाय ₹20,000. तो जैसा मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि कैपिटल का प्लस माइनस बढ़ना या घटना हमें कैपिटल के हेड के अंदर ही लिखना पड़ेगा. लाइबिलिटीज़ का है तो वो लाइबिलिटीज़ के अंदर ही होगा. एसेट का प्लस माइनस वो एसेट के साइड होगा.
Second thing, every transaction is having the two effect. So based on the fact, every transaction is having the two effect. So number one, so number one, क्या था क्वेश्चन? कमेंसेस हिज बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000. विथ 27,000 इसका मतलब ये है कि ये कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर वाला हेडिंग है, सो नंबर वन, सीरियल नंबर के नीचे नंबर वन लिखना है. हमारा क्वेश्चन है. तो अच्छा, यहाँ पे एक लाइन जो मैं आपको बताना भूल गया था. तो ये यहाँ पे एक कॉलम आएगा, सीरियल नंबर के बाद एक कॉलम आएगा जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन्स की कुछ इवेंट्स जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे वी विल बी राइटिंग, जो क्वेश्चन है वही लिखना है बट इन द शॉर्ट फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है. ये जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है, कमेंट्स द बिजनेस. कैपिटल को इंट्रोडक्शन किया, यानी अभी हमको टू फोल्ड इफेक्ट देखने हैं. मैंने जैसे बोला लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे कैपिटल यानी बिजनेस में मेरा कैश, याद रखना कैश इज माय एसेट्स. कैश मेरी प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी यानी एसेट, कैश मेरा एसेट है. एसेट यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे कैश को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे कैश बढ़ा हुआ है, प्लस मेरा कैश यहाँ पे बढ़ा है. नाउ जैसा मैंने बोला था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो अगर यहाँ पे कैश का प्लस हुआ है तो कहीं ना कहीं पे उसी अमाउंट का कुछ ना कुछ दूसरा भी इफेक्ट हुआ होगा, तभी जाके वो इक्वल होगा. क्योंकि अगर यहाँ पे 20,000 है तो कहीं ना कहीं 20,000 इज इक्वल टू 20,000 होना चाहिए. 20,000 इज इक्वल टू 0 इस तरह से नहीं है. यहाँ पे जो 20,000 है, अगर ये यहाँ पे समझो यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही 20,000 कोई जगह पे क्रेडिट भी हुआ होगा. सो वी ऑल नो कि हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो हम यहाँ पे इसे कैपिटल के हेड के नीचे ही लिखने वाले हैं. तो प्लस 20,000 कैपिटल. यहाँ पे कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कैपिटल है तो कैपिटल के अंदर ही हमने लिखा है. हाँ, यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं भाई किसका नाम है, ओनर का. राकेश. राकेश एंड अपॉस्ट्रोफी एस, यानी राकेश का पैसा लगा हुआ है 20,000 का. नाउ you need to verify before moving further that whether my left hand side is getting equal to this right hand side or not. So for that, make a line over here. So this 20,000 is equal to 20,000. My equation is getting tallied over here, correct? So LHS is equal to RHS at the moment. No issue, we can easily and quickly move to question number 2. I hope you are getting my point and you are getting this question as well. Now number 2, purchase of furniture for rupees 5,000 in cash. You need to understand the question before going to the final solution. Question है purchase of furniture 500 in cash. 500 रुपये का फर्नीचर हमने ख़रीदा है कैश दे के. मतलब यहाँ पे भी दो फोल्ड इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन जैसा मैंने बताया दो फोल्ड इफेक्ट होगी ही होगी, सिंगल नहीं होने वाला. एवरी ट्रांजेक्शन की दो फोल्ड इफेक्ट होगी. सो दिस इज लाइक दैट कि फर्नीचर
purchased on cash, फर्नीचर को कैश में परचेज किया है, इसका मतलब मैंने कैश दे के फर्नीचर खरीदा होगा। दैट मीन्स मेरे बिजनेस में से मेरा कैश कम हो गया होगा, माइनस हुआ होगा, कैश घट गया होगा। सो कैश इज़ माई एसेट, तो कैश बढ़ा तो प्लस, कैश घटा यानी वो माइनस। हम माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट साइन से, माइनस से भी कर सकते हो लेकिन ब्रैकेट से करोगे तो थोड़ा वो प्रॉपरली लगेगा, इट विल सूट इट, एंड एज पर अकाउंटिंग it is very better to represent the bracket sign for presenting the negative value. So यहाँ पे our 500 is deducted, our cash is deducted, that means our asset is deducted over here. asset deduct हुआ 500 रुपये का, गेटिंग इट, एसेट्स मेरा डिडक्ट हुआ, कैश डिडक्ट हुआ, लेकिन मैंने उस कैश को देके एक नया एसेट यानी एक नया फर्नीचर भी खरीदा है। सो मैंने एक नया एसेट परचेज किया है जिसका नाम होगा फर्नीचर। उस फर्नीचर को मैंने 500 रुपये में खरीदा है। सो दिस फर्नीचर, यानी यहाँ पे फर्नीचर का प्लस हुआ और यहाँ पे एसेट यानी एक एसेट का प्लस हुआ और एक एसेट जो मेरा कैश था वो माइनस हुआ। सो नाउ वी नीड टू वेरीफाई कि और कोई इफेक्ट हो रही है नहीं। एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट, तो हमारे टू इफेक्ट हो चुके हैं। यस, आवर टू इफेक्ट इज डन ओवर हियर। मेरा 500 रुपये का कैश, मेरा एसेट कम हुआ और मेरा 500 रुपये का एसेट बढ़ा। सो 500 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये इस पोर्शन में कुछ नहीं हुआ है। सो नथिंग ओवर हियर। सो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे 20,000 माइनस 500 यानी ये आ गया 19,500 प्लस 500 यानी ये 20,000। और मुझे चेक करना है कि वहाँ पे भी मेरा 20,000 जो है वो एज इट इज़ हुआ है या नहीं है। सो यस, 19,500 प्लस 100 इज 20 एंड यहाँ पे भी मेरा 20,000 मैच हो रहा है यानी 19,500 प्लस 500 20,000 इज इक्वल 20,000। माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश यानी एक परचेज हमने किया है फर्नीचर यानी एक एसेट को परचेज किया जो प्लस हुआ है, और एक एसेट जो कैश देके खरीदा है तो वो माइनस हुआ है। तो 1 इज माइनस 1 इज प्लस। सम नंबर पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। गुड्स को परचेज किया है, वी आर डीलिंग इन द बिजनेस, हमारा बिजनेस है गुड्स के अंदर डील करने। तो हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, गुड्स को खरीदा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें परचेज गुड्स इन कैश। कैश पे अभी हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कितने के 1,000 रुपये देके। तो जस्ट लाइक बिफोर हमने 1,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं। दैट मीन्स मेरा बिजनेस का कैश जो मेरा एसेट था वो 1,000 रुपये से कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये के कम कर दिया मेरे बिजनेस का कैश। गेटिंग इट? लेकिन एज यू आर अवेयर
कि दूसरी ट्रांजैक्शन की कुछ ना कुछ एंट्री होगी। तो अगर ये मेरा 1000 रुपये का मेरा एक एसेट कम हुआ है तो मैंने कुछ गुड्स परचेज किया है। परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक यानी मेरे बिजनेस का एक एसेट। रिमेंबर दैट स्टॉक इज माय एसेट। तो हमें अभी पता चलेगा कि हम कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक, ये 3 मेरे बिजनेस के एसेट कहलाते हैं। सो मेरा एक एसेट और बढ़ गया, बढ़ा यानी प्लस हुआ। कितने रुपए से? 1000 रुपये का स्टॉक मैंने बाय किया है, यानी एसेट का प्लस हुआ, और 1000 रुपये मैंने कैश देके उस एसेट को खरीदा है, यानी दिस 1000 इज इक्वल टू दिस 1000, दैट इज 0। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा 18,500, यहाँ पे आ जाएगा 500 जो फर्नीचर वाला पुराना वैल्यू था। बीच में यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि सिर्फ 2 ही इफेक्ट होते हैं, तो ये 0 यहाँ पे रहने दो, क्योंकि in this particular transaction there is nothing relating to furniture, तो हमने इसलिए फर्नीचर को यहाँ पे 0 मेंशन किया है। स्टॉक मेरा नया एसेट बढ़ा तो मैं यहाँ पे इसका प्लस में 1000 लिखूँगा। ऑन दिस साइड लाइबिलिटीज तो कुछ है नहीं, प्लस में भी तो हमने कुछ किया नहीं है, सो नथिंग ओवर हियर। एंड सेम थिंग यहाँ पे ऊपर से वो डायरेक्टली हम कैरी ऑन कर रहे हैं, तो 20,000 यहाँ पे आएगा। ना वेरीफाई कि ये 20,000 यहाँ से मैच हो रहा है या नहीं। सो ऑब्वियसली 18,500 प्लस 500 इज 19 एंड प्लस 1 दैट इज 20। 20 इज इक्वल टू 20। आवर इक्वेशन इज परफेक्ट, देयर इज नो एरर, सो वी कैन easily move on to transaction number 4. Transaction number 4, purchase goods for 2,000 on credit. Purchase on credit. क्रेडिट यानी उधार पे खरीदा है। पहले वाला जो था वो हमने कैश पे खरीदा था, सेकंड जो अभी बता रहा है वो हमने उधार पे खरीदा है। कितने का था हमारा परचेज? सो दैट इज़ फॉर 2000। तो उधार पे खरीदा यानी हमने हमारे बिजनेस का कैश यूज़ नहीं किया हुआ है। रिमेंबर दैट whenever the transaction is saying that the purchase or the sales or anything that is on credit, that means our cash or our bank balance is remain untouched, उसको हमने यूज़ नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे कैश यूज़ नहीं किया है, 0। फर्नीचर का रिलेटेड कुछ नहीं है, दैट इज़ नथिंग, सो अवॉइड इट। 2000 का गुड्स परचेज किया है तो मेरा गुड्स 2000 रुपीज़ से बढ़ गया होगा। सो 2000 रुपीज़ से गुड्स बढ़ा, बट अभी हमने यहाँ पे कुछ उधार में परचेज़ किया है, क्रेडिट परचेज़ किया है। मैंने आज पैसे नहीं दिए उसे, लेकिन मुझे कुछ टाइम के बाद वो पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये मेरे बिजनेस के लिए एक बर्डन है, बर्डन दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी जिसको मैं बोलूँगा क्रेडिटर्स, और मेरा क्रेडिटर्स 2000 रुपीज़ से बढ़ गया है, ये प्लस हुआ है। मेरी लायबिलिटी बढ़ी, मुझे पे करना है फ्यूचर में, तो यहाँ पे मैंने 2000 का प्लस बताया है। क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी, याद रखना, लायबिलिटी क्रेडिटर्स यानी जब भी हम कभी भी उधार में परचेज़ करेंगे तो उनको हमें पेमेंट करना होगा फ्यूचर डेट पे, तो वो मेरी जिम्मेदारी है बिजनेस की। सो आई एम राइटिंग इट 2000 ओवर हियर। 2000 से मेरा स्टॉक बढ़ा है तो हमने उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सो उसके अलावा और कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे हमने 0 ऑलरेडी कर लिया है, सो वेरीफाई द इक्वेशन। यहाँ पे 18500, यहाँ पे 500 अगेन, 2
जो हमारा नया है 2000 और ये आ गया 1000, ये हमारा 3000 का स्टॉक यानी गुड्स, यानी 18, 19 एंड 22। यहाँ पे आ गया ये हमारा 2000 और यहाँ पे हमारा था ओल्ड बैलेंस 20,000, that is 22,000 is equal to 22,000. Our equation is getting tallied over here. Moving to number 5. So number 5, sold goods costing 2,500 on credit for rupees 4,000. यहाँ पे हमने कुछ गुड्स खरीदा है 2500 की, जिसकी कॉस्ट थी MRP थी, उसको हम सॉरी MRP नहीं, 2500 का उसकी कॉस्टिंग थी, हमने 2500 में उसको खरीदा था, लेकिन हमने उसे 4,000 में बेचा है, यानी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ऑन क्रेडिट, ओके क्रेडिट पे है, तो फर्स्ट वी नीड टू राइट हियर sold goods on credit. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके गुड्स कितने की कॉस्टिंग का था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो डेट। तो 2500 की कॉस्टिंग का गुड्स है, यानी अभी फ़िलहाल मेरे पास 3000 के गुड्स हैं मेरे कंपनी में पड़े, उसके अंदर से 2500 की कॉस्टिंग का गुड्स, रिमेंबर डेट, 2500 की कॉस्टिंग का गुड्स मैंने बेच दिया है, कितने में, 4,000 रुपीज़ में। सो रिमेंबर डेट कि 2500 की कॉस्टिंग का गुड्स 4,000 में अगर मैं बेचूं तो 1,500 रुपये मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। नाउ आवर ट्रांजैक्शन दैट वी आर सॉल्विंग, हमने 2500 के गुड्स की एंट्री कर ली है, फर्स्ट इफेक्ट हो चुकी है। सेकंड इफेक्ट, हमने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया है, यानी उसका पैसा मुझे मिला नहीं है, no money was received for this transaction. Our goods of 2,500 has been deducted. मेरे पास 3,000 का गुड्स है, 2500 का बेच दिया है, मैंने उधार बेचा, यानी इन फ्यूचर मुझे ये पैसे मिलने वाले हैं। एनी हाउ आई एम गेटिंग दिस मनी इन फ्यूचर, सो इन फ्यूचर जब मुझे ये पैसे मिलेगा, यानी ये मेरा डेटर्स कहलाएगा, यानी ये मेरा न्यू एसेट डेटर्स, जिसको हमने उधार सामान बेचा है उसको मैं बोलूँगा डेटर्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में। डेटर्स का बढ़ना बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,000, सो 4,000 का डेटर्स बढ़ेगा। 2,500 का गुड्स था, लेकिन 4,000 में डेटर्स, 4,000 में उधार सेल किया है, यानी फ्यूचर में 4,000 मिलने वाले हैं, गुड्स था 2,500 का, अभी आ गया यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस ऑफ 1,500, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये 1,500 जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट या लॉस, रिवेन्यू या एक्सपेंस, जो भी प्लस माइनस होगा वो मैंने बताया था कि उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। डेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल ओनली, रिमेंबर डेट, ये कैपिटल में ही रिकॉर्ड होगा। दिस इज़ माय रेवेन्यू, दिस इज़ माय प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पे 2,500, सो 4,000 माइनस 2,500 दैट इज़ 1,500, 1,500 इज इक्वल टू 1,500। सो बाकी के अंदर आ जाएगा 0 0 अगेन 0
यहाँ पे तो ओके, दैट इज़ करेक्ट। तो न्यू इक्वेशन 18,500 plus 500, my stock is left with rupees 500 only. New debtors is 4,000, this is again 2,000, and here it is 21,500. So 21,500 plus 2,000, that is 22,000 and 23,500. 18 plus 500, 19. 19,500 plus 4, that is 23,000. Again my equation is perfect, no error. Moving to number 6. Number 6, paid 1,000 for rent and 5,000 for salaries. Rent and salaries. पेमेंट किया है 1,000 ऑफ रेंट का एंड 5,000 रुपीज़ सैलरीज का, यानी टोटल इन ऑल टोटल हमने कुछ 6,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। पेमेंट किया है यहाँ पे लिखा है, कैश से किया है, कहाँ से किया है, ऐसा कुछ लिखा है, जस्ट द थिंग इज़ मेंशन के हमने पेमेंट किया है। तो टोटल था हमारा 6,000 का पेमेंट हमने किया है, यानी मेरे बिजनेस में से 6,000 रुपीज़ एट द मोमेंट कम हो चुके हैं। जैसा मैंने बताया था अभी कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, उसे हमको प्रॉफिट, उसे हमें कैपिटल के अंदर ही एड लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे 6,000 का पेमेंट किया है, सो मुझे यहाँ से 6,000 माइनस करना पड़ेगा। गेटिंग इट? 6,000 मेरा कैश कम, मेरा एसेट कम, 6,000 मेरी लाइबिलिटी कम, यानी ये मेरा एक्सपेंस था, मैंने उसे पे कर दिया, यानी ये कम हुआ है। और यहाँ पे उसके पेमेंट करने से मेरा कैपिटल कम हो गया है। I hope you are getting my point. 6,000 is the rent and salaries. 1,000 for rent, 5,000 for salary. दोनों को मिला के 6,000 था, मैंने कैश पे किया तो मेरा उतना कैश कम हो गया। सो उसको माइनस करने के बाद मेरे पास बिजनेस में कैश बचा 12,500। ये मेरा इतना एसेट कम हुआ तो मेरा उतना लायबिलिटी, इतना मेरा कैपिटल भी कम हुआ है। दिस इज़ माय एसेट, मैंने पे कर दिया तो ये कम हो चुका है। इतना कैश गया तो मेरे बिजनेस में से उतना कैश कम हो गया है। दैट मीन्स मेरा कैपिटल अभी 6,000 रुपये से घट चुका है। इट मीन्स कि आई एम हैविंग लेफ्ट 15,500 with me. So if you can verify the LHS and the RHS, 15,500 plus 2, that is equal to 17,500. So 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 500, that is 17,500. Equation is perfect. And number 7, राकेश 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग, उसे हम बोलेंगे कि इफ़ ओनर इज़ विड्रॉइंग एनीथिंग for his personal use from the business, it will be termed as drawing. So राकेश अपने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये कैश लेके जा रहा है। तो मेरा बिजनेस में से 2,000 कैश कम हो गया है। एंड बिकॉज मेरा कैश कम हुआ है, ओनर अगर 2,000 रुपये लेके जाए तो ओनर अपने कैपिटल में से 2,000 रुपये लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी 2,000 से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। सो हियर इट इज़ 10,500, here it is 13,500, here it will be 2,000 as there is nothing over here left, no change,
over here no change, no change and no change, so 500 plus 500 plus 4000, so 10,500 plus 5, that is 11, plus 5 11,500, and plus 4 14,500, sorry 15,500, 13,500 plus 2, that is 15,500. So overall my LHS is equal to RHS with the amount 15,500. So it is my verified answer now. सो आई होप ये इक्वेशन जो अभी हमने किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन था. सो इसी तरह से हम आगे थोड़ा और इन डेप्थ डिटेल्स में हम सॉल्व करेंगे. दिस इज जस्ट द बेसिक फॉर टुडे. आई होप यू गाइज आर गेटिंग some question in your mind. I will try to solve it out as soon as we are advancing further. So no need to worry. We will be solving it step by step. Till then, see you later. Signing off.